ملیٹنٹوں نے اننتناگ میں آرونی بائی پاس کے نزدیک جموں سرینگر قومی شاہراہ پر CRPF پر گرینیڈ حملہ کیا. تاہم اس حملے میں کسی کے زخمی ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے. یہ حملہ قومی شاہراہ پر تعمیر کیا جا رہا ہوائی رن وے کے نزدیک ہوا ہے. حملے کے فوری بعد پولیس اور دیگر سیکیورٹی فورسز نے علاقے کا محاصرہ کیا. تاہم حملہ ور ملیٹنٹ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. پولیس نے اس ضمن میں معاملہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے. LG منوج سنہا نے جموں کشمیر سے افسپا کو ہٹانے کے کسی بھی امکان کو مسترد کر دیا ہے. جموں میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سنہا نے کہا کہ وہ جموں کشمیر کی صورتحال سے پوری طرح واقف ہیں اور انہیں یہاں افسپا ہٹانے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے. قابل ذکر ہے کہ مرکزی حکومت نے ناگالینڈ میں افسپا ہٹانے سے متعلق کوئی فیصلہ لینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے. اسپیشل پاور ایکٹ کو سر دیکھیے سر آرم فورس پہ بنی ہے تو یہاں سے بھی ریووک ہونا چاہیے کافی دیر سے. آپ اس میں کیا اس کی چنتا آپ مت کریے, میں اسے ٹھیک سے دیکھ رہا ہوں, ابھی مجھے کوئی ایسی ضرورت نہیں محسوس. پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون نے کہا ہے کہ PAGD میں مخبری ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ وہ کشمیر کے مفادات کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. لون نے کہا کہ NC, PDP اور کانگریس کی وجہ سے جموں میں ووٹ تقسیم ہوئے جس کا BJP کو فائدہ ہوا. وہ نیوز 18 اردو سے خاص بات چیت کر رہے تھے. لون نے کہا کہ الیکشن کے بعد ضرورت پڑی تو کشمیری مفادات کے لیے اپنے مخالفین کا ساتھ دینے کے لیے بھی وہ تیار ہے. پہلی بات ڈیلیمیٹیشن سے شروع کریں گے. حد بندی کمیشن کے پرپوزلز آئے, تجاویز آئی, آپ کا سخت ترین بیان آیا, پھر ایک دم آپ خاموش ہو گئے. ڈر گئے, ڈرائے گئے یا خاموش ہوئے؟ نہیں, میں نے اپنا ایک رد عمل دیا. آئی اسٹینڈ بائی ایوری سنگل ورڈ دیٹ آئی سیڈ. ہر لفظ جو میں نے بولا میں تب بھی تائید کرتا تھا, آج بھی. اس وقت ایموشن ہائی تھا. میں نے بولا اگر میں دوسرا بیان دیتا ہوں جیسے اس وقت دے رہا ہوں تو ہیومن نیچر ہے, انسان کا پارا تھوڑا کم ہوتا ہے. سو دیٹ should be my final reaction and that is my final reaction. کپواڑہ میں آپ کو سیٹ اضافی ملی, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا, آپ ناراض کیوں ہیں, کس بات کو؟ یہ کپواڑہ کا معاملہ نہیں ہے کہ میں کپواڑہ کا ہوں تو کچھ ہوں. یہ مسئلہ ہے کشمیری کمیونٹی کا, مسئلہ ہے کشمیری مسلمان کا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, کشمیر میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک جو آزادی چاہتے ہیں, دو جو میری طرح ہیں جو کہتے ہیں کہ ہندوستان ہماری ڈیسٹنی ہے. جب ہم آرگیو کرتے ہیں, مطلب میں پاکستان میں کافی دائر رہا ہوں, وہاں ہم ان کو بولتے تھے کہ کشمیری مسلمان کا امپاورمنٹ انڈین ڈیموکریسی نے کیا ہے. آپ دیکھو کشمیری مسلمان مہاراجے کے وقت کہاں تھا اور ہندوستان کی ڈیموکریسی نے کہاں لایا اس کو. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ڈی لمیٹیشن یا پچھلے 2 سال سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے, دے وانٹ ٹو ٹیک اس بیک ٹو دا مہاراجاز ٹائم. اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ ڈی لمیٹیشن ہی نہیں ہے, یہ بہت ساری چیزیں ہیں. یہ تو بالکل ڈس امپاورمنٹ آف دا کشمیری مسلم, اس کو ٹوٹل زمین میں گاڑنے والا معاملہ ہے. دس از ہاؤ آئی فیل اباؤٹ اٹ, اور میں نے وہ اپنے جذبات جو تھے وہ ریفلیکٹ کیے. ایک سچویشن ایسی بن رہی ہے کہ 370 کو لے کے یا اس کے بعد ڈی لمیٹیشن کو لے کے کئی لوگ یہ مانتے ہیں کہ لیڈرشپ کو ساتھ مل کے آنا چاہیے جن کو کشمیر کے انٹرسٹ میں انٹرسٹ ہے. کیا آپ اس طرح کی کسی بھی ایوالونگ سچویشن میں نے آپ کو دیکھا, آئی ہیو گیون یو این آنسر, لیٹ دیم آنسر می کہ 85 سے ہم 30 پر پہنچ گئے, وہ کہاں گئے؟ دیٹ از I think I have already answered that question. الیکشن کے بعد اگر ایک Oh, why not? Oh, wonderful, yes. Let us get the number of MLAs and then get together after elections. But اگر آپ اتنی گالی گلوچ کرو گے کہ آپ کو خود شرم آئے گی ایک دوسرے کے سامنے, تو بیٹھیے چپ کر کے, ہم سب لڑیں گے. آپ کو کیا ضروری بولنا ہے کہ وہ BJP ہے یہ. آپ صرف چناب میں اور جموں میں ایسا کریے کہ وہاں اینٹی BJP ووٹ ڈیوائیڈ نہ ہو. وہ تو آپ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. 12 سیٹیں 2014 میں BJP جیتا ہے, ایدر بیکاز NC نے ووٹ کاٹا ہے یا PDP نے ووٹ کاٹا ہے یا کانگریس نے کاٹا ہے. دے وڈ ہیو نارملی گون ٹو کانگریس. 12 میں سے 8 سیٹیں کانگریس جیت جاتا ہے. مائی پوائنٹ از دیٹ اف یو لک ایٹ دا پاسٹ, ووٹ ڈویژن کس نے کیا؟ تو انہوں نے کیا. سو آج جب مورالٹی دیکھیے, اینڈ آئی ول ٹیل یو ون مور تھنگ, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم میٹنگ میں بیٹھے, میں کوئی اس پر آئی ول ناٹ ٹیک اینی فالو اپ کوشچن, تو آپ دلی جا کر بولے صاحب ہم تو وہاں کر نہیں رہے, وہ سجاد کر رہا ہے. میرا فادر بھی وکٹم آف انہی سرکمسٹانس میں فائنلی ہی واز کلڈ. کون کر رہا ہے؟ جی غنی لون کر رہا ہے. تو آئی ڈونٹ وانٹ کہ اب کون کر رہا ہے؟ سجاد لون کر رہا ہے. آئی شوڈ ہیو دا ٹرسٹ دیٹ اف آئی ایم ان اے روم آئی وونٹ بی رپورٹڈ, اور دیٹ آئی ول ناٹ رپورٹ اینی بڈی, اور دیٹ آئی ول ناٹ رپورٹ اینی بڈی.
नाज़रीन, सज्जाद गनी लोन के साथ ये तफसीली बातचीत आप आज रात 8:56 पर न्यूज़ 18 उर्दू पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला में ऑक्सीजन प्लांट के एक पैनल में तकनीकी खराबी और उसमें धमाके की वजह से 2 टेक्नीशियन जख्मी हुए हैं। अहदेदारों ने 2 टेक्नीशियंस की जख्मी होने की तस्दीक की है। दोनों को इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया। जीएमसी बारामुल्ला के प्रिंसिपल डॉक्टर रूबी रेशी का कहना है कि कोई फिक्र की बात नहीं है, ऑक्सीजन प्लांट मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्लांट के पैनल में तकनीकी खराबी हुई और उसमें धमाका हो गया। जीएमसी के प्रिंसिपल ने कहा कि मामले की मजीद जांच जारी है। इंक्वायरी करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, कहाँ टेक्निकल फॉल्ट आया, हम तब तक कुछ नहीं बोल सकते। आई डोंट नो कितने मिनट्स के बाद या आधे घंटे के बाद एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया है। आप सुने मेरी बात, जहाँ पर 10 चीजें खराब होती है, एवरीथिंग आई विल लुक इनटू इट। इफ देयर इज एनी कहाँ से भी कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इनिशिएट हुआ है, आई विल टेक अ वेरी स्टर्न एक्शन। यू विल जस्ट सी इट, ठीक है? मगर इंक्वायरी तो करने दीजिए ना, ऐसे मैं बोलूंगी तो वो कुछ गलत भी बोल सकते हैं ना। श्रीनगर लेह शाहरा पर मुम्मार गांदरबल के नजदीक एक होटल में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। आग की खबर मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और मकामी लोग हरकत में आ गए और काफी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। आग से होटल को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। इस दौरान किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर रियल इस्टेट समिट 2021 में एक तारीखी पेशरफ्त की गई है और मुख्तलिफ शोबों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत के 39 मफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए। जम्मू में मुनक्किदा समिट में मरकजी वुज़रा हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और LG मनोज सिन्हा की मौजूदगी में मफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर मुख्तलिफ शोबों में 18,900 करोड़ रुपए की भारी सरमायाकारी हो रही है। जम्मू में मुनक्किदा एक तकरीब में कई याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए गए, जिसका एहतमाम जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत और रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के इश्तराक से किया था। मरकजी वजीर बराए हाउसिंग और शहरी उमूर हरदीप सिंह पुरी, मरकजी वजीर बराए PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा के अलावा मुख्तलिफ कंपनियों के आला अफसरान और CEOs ने तकरीब में शिरकत की। 39 MOUs पर दस्तखत किए गए, जिनमें 19 रिहायशी, 8 कमर्शियल, 4 हॉस्पिटैलिटी, 3 इंफ्रास्ट्रक्चर, 2 फाइनेंस और 3 फिल्म एंड इंटरटेनमेंट शामिल हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए दोनों मरकजी वुज़रा ने कहा कि इंडस्ट्री को जम्मू कश्मीर में खुली जहनियत के साथ कल्चर कायम करने का खैर मकदम किया जाना चाहिए। हरदीप सिंह ने कहा कि रियल एस्टेट मुल्क में टॉप रैंक का शोबा है जो रोजगार पैदा करता है। इन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में मकानात की मांग 2.5 से 3 लाख यूनिट है। That the demand for real estate construction in J&K, and I don't mean just housing, I mean tourism, hospitality, I mean warehousing, is at least 2.5 to 3 lakh units. It seems to me odd that you have the land, you have the ready demand, and yet that demand should not have been met. And I believe, Honorable Lieutenant Governor Ji, that the event you are holding today and all the other actions that you have taken in the intervening period will now accelerate that process. Why in Jammu and Kashmir will it be ever? But then when it was realized, no, we'll be contributing. At the end of the day, you have to make a contribution, you have to make a mark. And I said, if Apollo steps in, it will open the floodgates for the rest of the healthcare industry as well. And that motivated them. So ladies and gentlemen, these business leaders who are here today are not here to make money out of you. They are here to impart a new culture to you. And that is what is important for us. इस मौके पर LG मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में सयाहों की मांग को पूरा करने के लिए नए टर्मिनल कायम किए गए हैं। इन्होंने ऐलान किया कि 20 और 21 मई 2022 को कश्मीर में एक रियल एस्टेट समिट का एहतमाम किया जाएगा। LG ने कहा कि आने वाले दिनों में जम्मू और कश्मीर के तमाम शोबों में भारी सरमायाकारी होगी।
मनोज सिन्हा ने उन लोगों पर भी तनकीद की जो सरमायाकारी की आमद से डेमोग्राफी में मुमकिना तब्दीली के बारे में अफवाहें और झूठी कहानियां फैला रहे हैं। रोजगार भी आएगा, यहाँ का विकास भी होगा। दिक्कत यहाँ दूसरी है। कल मैं जानता हूं कि अखबारों में क्या खबर छपने वाली है, इसलिए इसका जिक्र करना जरूरी है। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग भी देश के बाकी शहरों की तरफ सुविधाएं प्राप्त कर सकें और दोष देंगे कि साहब रोजगार में कमी हो रही है, जमीन मिले नहीं लोगों को और चाहते हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी हो जाए, इंडस्ट्री को जमीन दी न जाए और चाहते हैं कि इंडस्ट्री लग जाए। यहाँ के लोगों को गुमराह करने की कोशिश जो की गई है, मैं ईमानदारी से बात कहना चाहता हूं मित्रों, इसके कारण जम्मू कश्मीर पिछड़ा हुआ है। अगर बेरोजगारी की दर है तो मुझे लगता है कि इसके कारण है। समिट में मुख्तलिफ कारोबारी, रियल एस्टेट और दीगर शोबों के सरबराहान ने भी शिरकत की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी को यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दाम करने पर हुकूमत जम्मू कश्मीर की सताइश की। We are here to make business happen, not just talk about the business. We want it to happen, and that is why this conference is extremely important for the purposes here. रोटी कपड़ा मकान, हमारे देश में रोटी और कपड़ा तो हमने दिलाया, लेकिन मकान अभी तक सबको नहीं दिलाया था, इसलिए इस सब्जेक्ट का महत्व बहुत है। दूसरी बात यह है कि हमारे रियल एस्टेट सेक्टर के मल्टीप्लायर इफेक्ट जो इकोनॉमी के ऊपर आती है वो बहुत बड़ा होता है, एंड इट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड। गुज़िश्ता हफ्ते जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जमीन के इस्तेमाल के कवानीन को तब्दील किया और ज़रई अराजी को गैर ज़रई मकासिद के लिए दोबारा दर्जा बंदी करने की इजाजत दी। इस फैसले पर इलाकाई जमातों ने सख्त तनकीद की, जिनका कहना था कि जमीन को गैर मकामी लोगों को आबाद करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मरकजी और जम्मू कश्मीर हुकूमत दोनों ने यकीन दिलाया कि इस समिट से सरमायाकारी की राह हमवार होगी, जिसके नतीजे में जम्मू कश्मीर की इक्तिसादी तरक्की में मदद मिलेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आज बर्फबारी और बारिश हुई है। रफियाबाद समेत बारामूला जिले के बालाई इलाकों में कल से औसतन 2 से 4 इंच बर्फबारी हुई है। इन इलाकों में रवा सीजन की ये पहली बर्फबारी है। किसान और ज़रई सरगर्मियों से वाबस्ता लोग बर्फबारी से खुश है। इसे सेब के दरख्तों और दीगर ज़रई सरगर्मियों के लिए फायदेमंद समझते हैं। दूसरी तरफ लोगों को बर्फबारी की वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अपर रफियाबाद के नारिबल और मुल्हक्का इलाकों के लोगों का कहना है कि बर्फबारी की वजह से सड़कों से राब्ता और बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई है। इलाके के लोगों को, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, ट्रांसपोर्ट में खलल के बायस कई किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सड़कों पर मौजूद बर्फ हटाने के लिए अपने अमले और मशीनरी को फाल किया जाए। वादी में ताज़ा बर्फबारी से लोग राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि इससे मौसम की खुश्की खत्म हो गई है। हमारे लिए बहुत अच्छे अब मेवा बागात इससे बनते हैं, जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन बर्फबारी के लिए मतलब जगह अच्छी है। अब मुसीबत हम लोगों के लिए ये है कि सड़क बंद, अभी यहाँ कोई देख नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं। अभी हम रहमा से आए पांचला तक, वहाँ से पैदल चल रहे हैं, अभी बहुत चलना आगे पैदल। अब गवर्नमेंट हजरात को ये हम गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे मशीन होनी चाहिए। हमारे एग्जामिनेशन चल रहे हैं तो हमें वहाँ जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आज भी हमें आधे रास्ता गाड़ी मिली ही नहीं, और हमें बोल रहे हैं कि मतलब जो वहाँ आएगा तो जो नहीं आएगा उसको ऑनलाइन क्लासें देखनी है। अगर हमें पावर नहीं आएगा हम ऑनलाइन क्लासें भी नहीं देख सकते, इसलिए हमें वहाँ जाने में बहुत तकलीफ होती है। तो आप बोलते हैं कि पावर में भी प्रॉब्लम हो गई कल से? जी हाँ, कल से हमें पावर भी नहीं, हमारे फ़ोन ऑफ हैं। और आज हमें स्कूल में सबमिट करना था, मुझे पता ही नहीं था क्योंकि मेरा फ़ोन कल से ऑफ था, तो मैंने वहाँ जाके लिखा तो वहीं पे सबमिट किया। खित्ते लद्दाख के लेह जिले में बर्फबारी से पूरा कस्बा सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क खरदोंगला में 6 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई है। लेह शहर में 1 से 2 इंच बर्फ दर्ज की गई है। बर्फबारी से आम लोगों और
खास तौर पर किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वाज़ेह रहे कि लेह में रवा बरस अब तक बर्फबारी नहीं हुई थी। बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन की वजह से गाड़ियों को चलने में दुश्वारी हो रही थी। लद्दाख वालों के लिए मुबारकबाद देते हैं। इस नया बर्फ के गिरने के साथ साथ मैं उम्मीद करता हूं हमारे यहाँ खुशहाली होगा, हमें सारे बीमारियों से मुक्ति होगा। मुक्ति के लिए हमें एक ही बात करना चाहिए, गवर्नमेंट के ऑफिस को देखते हुए हमें मास्क डाल के हमें हर जगह जाना चाहिए। कुपवाड़ा जिले के बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई है। मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी के साथ साथ बारिशों का सिलसिला जारी है। सरहदी इलाके करना, केरन और मसल में 1.5 फुट बर्फ जमा हो गई है। मसल और करना के मैदानी इलाकों में भी 2 इंच के करीब बर्फ रिकॉर्ड की गई है। इंतजामिया ने तीनों सड़क राब्ते आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिए हैं। तमाम लिंक रोडें जो हैं वो बंद हो गई हैं। हमारी साधना नेशनल हाईवे है वो भी बंद है, उस पर काफ़ी फिसलन हो चुकी है। गवर्नमेंट से ये अपील रहेगी कि जैसे ही मौसम ठीक होता है, मौसम खुलता है, यहाँ पर एयर सर्विस चॉपर शुरू की जाए जो पिछले कई सालों से चल रही है, और हमारी लिंक रोड्स जो हैं इनको दोबारा बहाल किया जाए। थोड़ी सी बर्फ़ पड़ने में भी अभी देखो पूरी साधना हमारी बंद होगी और हमारे कोई बीमार हो जाएंगे अगर हॉस्पिटल के अंदर, आज हम उन्हें लेकर कहाँ जाएंगे। एहतियाती तदाबीर के तौर पे हैं, कल शाम को ही हमने वहाँ ट्रैफिक बंद किया था, और लोगों से भी मेरी यही अपील रहेगी कि खासकर बालाई इलाकों में ज़्यादा वेंचर ना करें और अपनी सेफ्टी को जो है प्रायोरिटी। बांदीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में ताज़ा बर्फबारी हुई है। ताज़ा बर्फबारी के बाद बांदीपुरा गुरेज सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक गुरेज, तुलेल और बगतूर ब्लॉक से ताज़ा बर्फबारी की इत्तला है। ताज़ा बर्फबारी के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने कुछ इलाकों में सड़कों से बर्फ हटाने का काम अंजाम दिया। जैसे कि आप जानते हैं, जो मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की थी, कल बाद दोपहर यहाँ पर बर्फबारी शुरू हुई है। तकरीबन 4 से 5 इंच तक यहाँ पर बर्फ़ पड़ी है। ज़िला इंतज़ामिया ने पहले ही गुरेज बांडीपुरा रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, और हम शुक्रिया अदा करते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट का। जुनून है, बगतौर से लेकर कंजलवन तक जो अंदरूनी सड़कें थी उनसे बर्फ़ हटाने का काम शुरू कर दिया। जिला पुंछ के बालाई इलाकों में आज दूसरे रोज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। इस वजह से इलाके में सर्दी में इजाफा हो गया है। कई बालाई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई मुतासर हुई है। लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बर्फ से मुतासरा इलाकों के लोगों का कहना है कि उन्हें बालन और तेल खाकी भी मयसर नहीं है। उन्होंने जिला इंतजामिया से फौरी इक़दामात करने की मांग की है। से गुजारिश करते हैं कि ये बर्फाने इलाके का दौरा किया जाए और इस बर्फी इलाके के लोगों का हाल पूछा जाए। यहाँ पानी बंद है, बर्फ से पानी ढका हुआ है और बिजली तो रही है, लेकिन पानी जो है, पानी को कोरा लगा हुआ है, पानी जम गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, एक तो ये लाइट का निज़ाम दुरुस्त किया जाए ताकि हमें कोई जो है मुश्किलात का सामना करना ना पड़े, और दूसरा ये जो जंगलात की तरफ से लकड़ी मिल रही थी उनको इजाज़त दी जाए कि वो जितनी भी जंगल के अंदर लकड़ियाँ गिरी हुई हैं, जो बोसीदा लकड़ियाँ हैं, वो इजाज़त दें, वो हम जलाकर अपने घर का कारोबार चलाएं। भलीसा के बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है, जबकि गंदू और ठाठरी के मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। गुज़िश्ता 2 दिनों से सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। भलीसा और ठाठरी में लोग बुखारियों और कांगड़ी का इस्तेमाल करने लगे हैं। यहाँ माइनस में टेम्परेचर है, तो इतनी सर्दी हमने कभी नहीं देखी जितनी सर्दी इस साल पड़ी हुई है। यहाँ बुखारियाँ जली हुई हैं, कुछ लकड़ी की, कुछ गैस की, तो बहुत सर्दी है। सुबह जम्मू के मशहूर सयाहती मकाम पत्नी टॉप, नथा टॉप और सनासर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के कुदरती नज़ारे को देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं। सयाहों के मुताबिक ये मकाम काफ़ी पुरअमन और पुरसुकून है और यहाँ हालात भी साजगार है। सयाहों ने कहा कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद हर एक को पत्नी टॉप और सनासर आना चाहिए। मेरा मिक्ता मिश्रा, हम दिल्ली से आए हैं। हम घूमने वैष्णो देवी आए थे, पर हमें सजेस्ट किया था तो हम पत्नी टॉप भी आए हैं। बहुत ब्यूटीफुल एरिया, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी आए हमारे साथ। मेरा नाम श्वेता मिश्रा है और मैं भी वैष्णो देवी घूमने आई थी, तो मैं भी अपनी सिस्टर के साथ यहाँ पे आई हूँ पत्नी टॉप, और ये मेरा सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम आई थी तो वहाँ पे उस टाइम स्नो नहीं था, इस टाइम स्नो है, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आई सजेस्ट यू टू कम हियर एंड विजिट द प्लेस। मैंने सपने में मैंने सोचा था कि जम्मू आके मैं कभी इस व्यू का आनंद लूंगी, बाकी आप देख ही सकते हो कैसा हो रहा है इस टाइम।
गुलमर्ग और टंगमर्ग में ताज़ा बर्फबारी के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीजन टंगमर्ग पटन और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुश्तरका तौर पर रातों रात सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया। टंगमर्ग से गुलमर्ग तक सड़क पर बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया है। सड़कों पर फिसलन की वजह से टंगमर्ग से गुलमर्ग जाने वाली गाड़ियों को जंजीर बांधे बगैर गुलमर्ग जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। एसडीएम गुलमर्ग और एसडीपीओ टंगमर्ग ने गाड़ियों के टायर्स पर जंजीर बांधने की तलकीन की है। सर्दियों के इन अयाम में बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने की शरह काफी बढ़ जाती है। पुलवामा में पीडीडी के वर्कशॉप में इन दिनों ट्रांसफार्मरों की मरम्मत का काम दिन रात जारी रहता है। वर्कशॉप में काम कर रहे मुलाजमीन का कहना है कि सरमा के अयाम में उन पर काफी दबाव रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द ट्रांसफार्मरों की मरम्मत की जाए। उन्होंने लोगों से बिजली का मुनासिब इस्तेमाल करने की अपील की है। और जो एलजी साहब की इंस्ट्रक्शंस है कि विद इन 12 आवर्स में हमें टाउन का ट्रांसफार्मर रेस्टोर करने और विद इन 24 आवर्स जो है हमें रिमोट के ट्रांसफार्मर रेस्टोर करें, उस डायरेक्शन पे काम करते हुए हमारे लड़के इवन लेट नाइट तक काम करते हैं और मकसद और मोटिव यही है कि लोगों को आराम मिले। जो प्रॉब्लम है गांव में जो या कहीं पर भी हमारा जो ट्रांसफार्मर है इस पे ज़्यादा लोड होता है। जितना एग्रीमेंट होता है गांव में उससे कहीं ज़्यादा लोड आता है और जो ट्रांसफार्मर यहाँ आते हैं डैमेज होकर वो फुली डैमेज होते हैं। उसमें न एलटी रहता है न एचटी रहता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि 24 घंटे में उनको ट्रांसफार्मर वापस मिले। और जो भी हमारी गुजारिश है लोगों से कि लोड ज़रा कम करें। लद्दाख में चिकतान इलाके के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस की कामयाब ट्रायल लैंडिंग हुई है। वाज़ेह है कि इमरजेंसी के वक्त चिकतान के लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके चलते एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC मोहसिन अली ने ये मामला LG इंतजामिया के साथ उठाया था। अब चिकतान हेलीपैड पर कामयाबी से इस हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई है। काउंसलर और क्रू मेंबरान का बड़ी तादाद में मौजूद लोगों ने शानदार इस्तकबाल किया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सदीपुरा बीरवा के लोगों ने DC ऑफिस बडगाम के बाहर एहतजाज किया। उनका कहना था कि उन्हें मकामी कब्रिस्तान में तदफीन के लिए जगह नहीं दी गई। इलाके के कुछ लोग मैयत को मकामी कब्रिस्तान में दफनाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। एहतजाजियों का कहना है कि वो पसमानदा तबके से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि शायद यही वजह है कि उन्हें मकामी कब्रिस्तान में मैयत को दफनाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इन लोगों ने इंतजामिया के साथ साथ उलमा से अपील की कि उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। किराम है उन तक भी ये बात पहुँचे, खासकर जो हमारे वादी कश्मीर के जो मीरवाइज साहब है, मौलवी उमर फारूक साहब, उनके नॉलेज में ये बात आए कि वो इसमें अपने जो उनके उलमाई किराम है बीरवा में, खासकर जो मीरवाइज वस्ते कश्मीर है, ये उन्हीं के गाँव में ये मामला हो रहा है ताकि उनको भी बाखबर किया जाए। 5-7 वोर वस मे वुचमुत आज तान 5-7 वरियन मज युथ वाक़ा गसान ये कश्मीर मज सोरे वथुन बिहुन सतपुरिस मज, मजार सतपुरिस मज, मस्जिद सतपुरिस मज, यम 3 हथ वार वनान तुह नीरो अमि मजार मज। अस अपील करान उलमाहन अत करो छाड़बीन, यह जायज़ कि 2 साल कबल संगम अनंतनाग में काम के दौरान मोहम्मद आसिफ सोफी नामी शख्स के साथ एक ऐसा हादसा पेश आया जिससे वो अब तक नबर्दा आजमा है। काम के दौरान बिजली का करंट लगने से आसिफ की रीढ़ की हड्डी में शदीद चोट आई थी। ये शख्स 2 सालों से बिस्तर पर लेटा हुआ है। 3 ऑपरेशंस के बाद भी आसिफ सेहतयाब नहीं हो सके। इलाज के लिए उन्होंने अपनी तमाम जमीन और जायदाद फरोख्त कर दी है। डॉक्टरों के मुताबिक अब उनका चौथा ऑपरेशन करना लाजमी है, जिसके लिए आसिफ सोफी को मोटी रकम दरकार है। उनके अहले खाना ने साहिब सरवत अफराद और इंतजामिया से मदद की अपील की है। अगर आप इस कुंबे की मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर में रकम जमा कर सकते हैं। जुन चटनस दौरान लोगुस बह पावरस पत पेस बह कुल पे वस पत नकुस बह थोद वथित कहीं। पत अगर मैं थोड़ा बहुत कह सह कुन में सह लगे मे सर्जरी दौरान तम पत हेकुस बह मे कर कहीं। अम खतर मंगन गवर्नमेंटस हेल्प लुकन तुस थोड़ा हेल्प गम सह पन अयाल हेकान पकन थोड़ा वो चूरिम ऑपरेशन कर अत गवर्नमेंट तमिस कर मदद आम लुक तमिस पूरस पूर मदद यमिस चूरिम ऑपरेशन हे कर
अमिस कह सहारा अमिस बच्चे जो तो बेस खानदारी यह सवाब अमिस मदद कर बिल्कुल पत्थर पेमुत यह हेकन थोद वथित। पुंछ में महकमे बिजली की लापरवाही की वजह से मोहम्मद आजीम नामी शख्स काफी परेशान है। घर में बिजली का कनेक्शन न होने के बावजूद बिजली महकमे ने 1,29,000 का बिल मोहम्मद आजीम को भेजा है। ताजीम का कहना है कि घर में बिजली का कनेक्शन न होने के बावजूद महकमे बिजली की जानिब से हर माह उसे बिजली का बिल भेज दिया जाता है। एसडीएम मेंढर का कहना है कि वो महकमे बिजली के आला ओहदेदारान के साथ इस मसले पर बात करेंगे। मामला हुआ कि मैंने एप्लीकेशन बहुत दी है ए साहब के पास, जे साहब के पास, कि मेरा कनेक्शन काट दो, मेरा बिजली है ही नहीं है, कनेक्शन कैसे चल रहा है। और मेरा बिल बन गया 1,03,000 रुपया। ये बोल रहे हैं आप सुन को जज बैठा था उधर, आप जाना था तो सूद माफ़ हो जाता, मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों चोर बनूँ उधर का, जब मेरे घर कनेक्शन ही नहीं है। ये एक निहायत गरीब आदमी है, इतना गरीब है कि जिसके पास खाने के लिए 10 सेर मक्की या 10 सेर दहन नहीं होता है। अरसा 10-15 साल से ये बेचारा अलग मकान बना हुआ है, आज तक हमने इसकी बिजली नहीं देखी। ऐसे लोगों के अगर बिल ऐसे आए तो ये बड़ी शर्म की बात है। मोहम्मद ताजीम मेरे पास अभी आए हैं अड़ी से, इन्होंने बिल दिखाया है, इसकी हम इंक्वायरी करते हैं। अपेरेंटली ये कह रहे हैं कि इनके घर में कनेक्शन भी नहीं है और इतना ज़्यादा बिल तो मुझे लगता नहीं है, मे भी कुछ एरर भी हो सकता है। तो मैं अभी AW साहब से इंक्वायरी करवाते हैं इनके बारे में कि भाई इनका इतना बिल कैसे आया है, कनेक्शन है या नहीं है। जैसे ये बता रहे हैं कनेक्शन है ही नहीं, उसको भी वेरीफाई करेंगे और देखते हैं इनका कुछ बिल है कि नहीं है, उसको वेरीफाई करेंगे। कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके करना में लोगों को सड़कों की खस्ताहाली और बिजली फीस में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है। भारी बर्फबारी की वजह से करना कुपवाड़ा शाहरा कई हफ्तों तक बंद रहती है। इसकी वजह से लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता है। न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे यहिया सुल्तान के साथ बातचीत के दौरान इन लोगों ने कहा कि कई बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना है। ये हमें 8 साल 5-6 आदमी मरती है, 8 साल कोई साल का, इस साल भी 2 और 4 आदमी मर गए। तो सबसे बड़ी मुश्किल हमें साधना की है। और उसका हमें पानी बिल्कुल मिलता नहीं है। पानी हमारे पूरा पानी है, 10 से पानी है ही नहीं, लोग मर रहे हैं, सफर कर रहे हैं लोग, औरतें आपस में लड़ाई कर रही हैं, है ही नहीं, बहुत मुश्किल है। यहाँ कोई पूछने वाले हमें है ही नहीं है, कोई नहीं। 10 बार गया मैक्सिम साहब के पास गए, वो बोलता है करो करो जी, लेकिन कोई नहीं पूछने वाला नहीं है, खुदा ही है बस। बिल भी चढ़ा दिया, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, खाने के टाइम पर बिजली नहीं होती है, बच्चे पढ़ते हैं छोटे, क्या करेंगे साहब, गरीब आदमी। रोड की मुश्किलात है, इधर पानी की है, लाइट की है, सबसे ज्यादा ही मुश्किलात है। बच्चों को पढ़ना मुश्किल है, सबने इन्वर्टर ले रखे हैं और लाइट की बिल भी चढ़ा दी इन लोगों। राजवन बडगाम के लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। डीसी ऑफिस बडगाम के सामने एहतजाज कर रहे इन लोगों का कहना है कि वो बडगाम टाउन के नजदीक रहते हैं। इसके बावजूद बडगाम रिसीविंग स्टेशन से उनकी लाइन हटा दी जा रही है। उन्हें बडगाम के दूर दराज इलाके में बने नए रिसीविंग स्टेशन का पावर फराहम किया जाता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PDD ने न्यूज़ 18 को बताया कि बडगाम रिसीविंग स्टेशन पहले से ही ओवरलोड है। अब नए रिसीविंग स्टेशन से बडगाम के साथ साथ राजवन और दूसरे इलाके को बेहतर बिजली फराहम होगी। हमारा मसला है पावर का। हमारा गृह रिसीविंग स्टेशन बडगाम में है। आजकल हमारा रिसीविंग स्टेशन छून तब्दील किया जा रहा है, जहाँ से हमारे ये पावर पूरी अच्छी तरह नहीं चलेगा। हमारा मतलब मकसद है यही, फिर से बडगाम से चालू किया जाएगा। हमारा कि लांप योर चलान यह सही बडगाम योर चलान यह सही मतलब दर्द पूरा लांप यह सही योर एग्जन सोब SHO थ्रू दबाव कोशिश करान, थान थ्रू दबाव कोशिश करान, पुलिस सोजान, सान लड़कन यह सही थप दिवान तो निवान वातन पे बरान हवालात। मजबूर गसान थानस ब्रोह कन दोहस पे रोजन खतर। मसल अम सह कि आंगनस मज पावर, आंगन मज तुलित अकिस पहाड़स पे वातान दपान पहाड़ों करो इस्तेमाल, आंगनुक महज करो की। सर्द लहर के नतीजे में भदरवा में पानी का बहरान पैदा हो गया है। कई जगहों पर पानी की सप्लाई लाइनें मुंजमद हो चुकी है। मुंजमद सप्लाई लाइनों को पिघलाने के लिए लोग बर्नर, गर्म पानी और आग का इस्तेमाल करते हुए देखे गए। डोडा में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति ने बताया कि अगरचे सर्दी की वजह से उनके महकमे के लिए मसाइल बढ़ गए हैं, जिले में ज्यादातर वाटर सप्लाई स्कीमें काम कर रही हैं। उन्होंने एतराफ किया कि भदरवा, भलीसा, देसा और कश्तीगढ़ जैसे बालाई इलाकों में वाटर सप्लाई स्कीमों का ढांचा मुंजमद हो चुका है। हफ्ते से जो है भदरवा
इतना ज़्यादा ठंडी जगह बन गई है कि यहाँ जो है चलता हुआ पानी जो है रातों को जम रहा है। पाइपें वगैरह जो है पीएचई का जो पानी आता है घरों में या बाथरूम की जो सेंट्री फिटिंग है उसका तक पानी जम जाता है। सुबह जो है पानी जो है जाम पानी खोलने के लिए लोगों को जो है पाइपों के ऊपर गर्म पानी डालना पड़ता, तब जाके जो है पानी की सप्लाई बहाल होती है। पानी होता है ये भी पाइपों में जम जाता है और हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमें वही अपना गुजारा, शाम को हम पानी बाल्टी में भर के और सुबह उसी से हम अपना गुजारा करते। जिला गांधरबल के पटी शालाबुग गांव के लोगों ने अपनी ज़रई ज़मीन का मुआवजा जारी न करने पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया जो उन्होंने सेमी रिंग रोड की तामीर के लिए फराहम की थी। उनके मुताबिक मुतल्लिका हुकाम ने साल 2017 में निशानदही का अमल किया और ज़मीन के हसूल के लिए 2 गाँव रबेतार और पटी शालाबुग के ज़मीन मालिकान से राब्ता किया। मुजाहिरीन का कहना था कि ज़मीन के हसूल के बाद उन्हें ज़मीन पर लगाए गए पॉपुलर दरख्तों को भी काटने पर मजबूर किया गया। जमीन के हसूल के 5 साल गुजर गए हैं। रबेतार गांव के लोगों को 75% मुआवजा दिया गया, लेकिन पटी शालाबुग गांव के लोगों को 1 पैसा भी नहीं दिया गया है। जमीन इंज खतर बूत वनकस त्रत मगर वो पेमेंट कर वागुजार कहें गसान कल पगह गरा दपान स्टाप गई गरा क्या गरा फाइल रूज तथी अपील कर गवर्नमेंटस बहुत बड़े प्लांट्स थे सर, हमने मकान सर यहाँ से डिस्ट्रॉय किया है सर। हमने यहाँ से प्लांट्स को बहुत सारे ज़मीन को सर हमने तबाह किया यहाँ से। हम अब डीसी साहब से अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ ताउन दे सर, क्योंकि हमें यहाँ से बहुत नुकसान हुआ है सर। सयाहती मकाम गुलमर्ग में महकमे सयाहत की जानिब से जारी विंटर कार्निवल के चौथे रोज़ मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद हुए। फनकारों ने सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद करके सामीन को महजूज किया। काफ़ी तादाद में इस कार्निवल में सयाहों और मकामी सैलानियों ने शिरकत की। सयाहों ने भी स्टेज पर खूब समा बांधा। सयाहों ने प्रोग्राम के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। गुलमर्ग में यह विंटर कार्निवल 1 जनवरी 2022 तक जारी रहेगा। इस कार्निवल में मुख्तलिफ सरमाई खेलों का भी इनेकाद होगा। खून में देखो, एक दुनिया में कौन लगा नहीं पाएगा। कश्मीर आएगा तो पुनर्जन्म होगा, नेचुरल ब्यूटी। जहाँ पे आपका ऐसे बर्फ गिर रहा है, यहाँ पे डांस हो रहा है, इतना अच्छा गाना चल रहा है, मतलब हर गाना जो है आपको नचा देगा। आपको लगेगा ही नहीं कि भाई यहाँ पे कुछ ठंड है, आप इतना एंजॉय करोगे। जो फेस्टिवल ये आगे भी होने चाहिए और जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको और ज्यादा फन और मजा आना चाहिए यहाँ पे। और हम लोग भी बहुत एंजॉय किया, बहुत डांस किया, बहुत मजा आया। यहाँ एक्सप्लोर कर रहे थे, देखा यहाँ पे कार्निवल चल रहा है तो हम भी यहाँ पे आ गए, बहुत एंजॉय किया। वाकई में गुलमर्ग की इतनी अच्छी खूबसूरती देख के हम बिल्कुल फिदा है। कश्मीर आई कल्चरल फूड्स जितने भी यहाँ पे कल्चरल थिंग्स है कश्मीर के पॉपुलर है, सब चीजें डिस्प्ले पे लगी हुई है। जो 95% ऑफ टूरिस्ट जो आते हैं वो यही रिकमेंडेशन लेके आते हैं कि पहले हमें वहीं पे लेके चलिए जहाँ पे विंटर कार्निवल फेस्टिवल चल रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो ये प्रोग्राम 31 दिसंबर तक रहने वाला है, तो इसमें और ज़्यादा जो लोग हैं और ज़्यादा जो सयाह हैं उनकी शमूलियत होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा के दिनों में भी ऐसी जो सरगर्मी रहेगी और ऐसा ही जोश व खरोश टूरिस्ट जो हमारे सयाह मुख्तलिफ रियासतों से आते हैं उनमें रहेगा। कश्मीरी पंडितों ने आज जम्मू में मुनक्किदा एक तकरीब में साल 2022-23 के लिए कम्युनिटी का सालाना कैलेंडर जारी किया। अवतार ज्योतिषी ने अपनी आंझानी अहलिया कृष्णा ज्योतिषी की याद में ये कैलेंडर तैयार किया है। इसे पीर पंजाल तंजीम के बैनर तले जारी किया गया, जिसकी क़यादत रमेश हांगलू कर रहे हैं। स्वामी कुमार जी, प्रोफेसर BL ज्योतिषी और दीगर मौजूद थे। कैलेंडर का नाम कश्मीर के शक्ति स्थल रखा गया है। कैलेंडर में कश्मीर के बहुत से मजहबी मकामात की तस्वीर शामिल की गई है। रमेश हांगलू ने कहा कि कश्मीरी पंडित खास तौर पर नौजवान सकाफत से दूर हो रहे हैं, इसलिए उन्हें कश्मीरी पंडितों की भरपूर सकाफती तारीख और दीगर पहलुओं से आगाह करना बहुत ज़रूरी है। इस साल जो 12 शक्तियों के फोटो इसमें आए हैं, हो सकता है अगले साल और 12 के आ जाएं। और हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी जिस गांव में हो, जिस इलाके में हो, जिस शक्ति का स्थल हो, वो हमसे अप्रोच करें और शास्त्री से अप्रोच करके अगले आने वाले साल में हम नया कैलेंडर निकालेंगे जिसमें वो भी आएंगे, ताकि ये जो हमारी सारी शक्ति पीठ है इनके बारे में हमारी जो आने वाली नस्ल है, हमारी जो प्रोजनी है, उनको पता चले और उनको बार बार हम ये एहसास दिलाएं
कि यही शक्ति हमारे एक बहुत बड़े 5-6 हज़ार साल की हमारे आशीर्वाद रूपी रहे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग का तामीराती काम अब आखिरी मराहिल में है। GMC इंतजामिया ने कॉलेज को दयालगाम मुंतकिल करने का अमल मरहलावार तरीक़ों से शुरू करने का फैसला किया है। कॉलेज की मुंतकिली से जंगलात मंडी में कायम अस्पताल में मरीजों के लिए दरकार जगह और वार्ड्स में मजीद इजाफा होने का इम्कान है। इससे मरीजों के बढ़ते रश पर भी काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। लोगों ने अस्पताल में अमला बढ़ाने और मशीनरी कायम करने की अपील की है। हमारा ये मकसद है कि क्लासरूम जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। जो ही इनका थर्ड प्रोफेशनल होगा, यानी जैसे कि 6th सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर जिसको कहते हैं, वो क्लास हम वहीं स्टार्ट कर लेंगे और जो नया बैच आएगा वो इंशाअल्लाह ताला वहीं से अपनी तालीम हासिल करेगा। हमारी ये सारी कोशिश है कि जितनी भी फैसिलिटी सरकार की हैं इनको जल्द से जल्द तैयार किया जाए। बट चूँकि इस दौरान कोविड हो गया या कुछ और नामुनासिब हालात हो गए कि कुछ मजदूर चले गए, उसकी वजह से काफ़ी डिले। गागरन शोपिया में सूमो ड्राइवर्स ने जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना है कि उन्हें बोथू चौक से सवारियां उठाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उनका कहना है कि सिंगलू स्टैंड की गाड़ियों से उनकी रोजी रोटी मुतासिर हो रही है। उन्होंने बोथू से सवारियां उठाने की इजाज़त देने या सिंगलू सूमो स्टैंड को भी गागरन मुंतकिल करने की मांग की है। गाड़ी ड्राइवर कत्या परिवार गई पटिन लचन मज यप बैंक लोन यप लॉकडाउन यप दह खो दह खसान कागजन खसान तिलस खसान अम थो एक्सीडेंट थो अपार कड़क यपोर यहाँ गो सोरे शिफ्ट कर ब्रो अगर नो शिफ्ट कर दीतन तेल गाड़ियन 3 परमिशन तारो अख गाड़ी अपोर बाकी गाड़ी थो ये तमो रूट मातृबुक तम दांगोम तवन विहिल तवन कसदूर तवन कापरन तवन यप तमो नोहम तवन तम पैसेंजर सारी नवन सफर कर तुंद वजात वन ARTO सब ये गन कंसर्न जाय मौका पे यह कर मसला। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। अपनी पार्टी की जानिब से पन्नर जागीर त्राल में सीनियर लीडर गुलाम मोहम्मद मीर की सदारत में एक वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इलाके के सरपंच बशीर अहमद खान ने अपने कई हामियों के हमरा पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। मीर ने कहा कि बाकी सियासी जमातों ने त्राल को हमेशा नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में अभी भी लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। जिला राजौरी में थाना मंडी बफेली रूट में जमीन खिसकने पर लोगों ने धर्मराज कंस्ट्रक्शंस और जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने काम की सुस्त रफ्तारी का इल्जाम लगाया। लोगों का कहना है कि निजी कंपनी की जानिब से जारी तामीराती काम की वजह से जमीन खिसक रही है और उनके मकानों को खतरा लाहक हो गया है। एहतजाजियों ने कहा कि उनकी जमीन भी तबाह हो गई है। उन्होंने जिला इंतजामिया से मुआवजा देने की अपील की है। अखनूर के खोड़ में वाक़ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बाटल का नाम तब्दील कर दिया गया है। स्कूल को शहीद सुदेश कुमार के नाम से मौसूम किया गया है। इस मौके पर शहीद के घर वाले, SDM खोड़ और दीगर अफराद मौजूद थे। शहीद सुदेश कुमार ने इसी स्कूल से अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की थी। वो साल 2003 में मिलिटेंटों के खिलाफ एक ऑपरेशन में शहीद हुए थे। पीरपंजाल चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया है। जिला इंतजामिया राजौरी की जानिब से मुनक्किदा टूर्नामेंट का फाइनल मैच स्पोर्ट्स स्टेडियम खेयूरा में खेला गया। फाइनल मैच में राजौरी हिलव्यू ने फतेहपुर लाइंस को शिकस्त दे दी। DC ने कहा कि टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों की सलाहियतों को फरोग देने और उन्हें मुस्बत चीज़ों में मशगूल रखना था। जीतने वाली टीम को 2 जबकि हारने वाली टीम को 1 लाख रुपए का नकद इनाम दिया गया। कठुआ की कस्बा नगरी में म्युनिसिपल कमेटी ने 5 करोड़ रुपए की लागत से बाजू नदी की तज़ीन के काम शुरू किए गए हैं। साबिक वजीर राजीव जसरोटिया ने कामों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से सयाहत को फरोग मिलेगा और नदी के किनारों पर पार्क और कॉरिडोर बनाया जाएगा। DC पुलवामा बसरुल हक चौधरी ने खुद रोजगार स्कीम के निफाज के अलावा सालाना क्रेडिट प्लान के तहत डिपॉजिट्स, एडवांसेस और कामयाबियों में बैंकों की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के तहत होने वाली पेशरफ्त का भी जायजा लिया। DC ने मुख्तलिफ अफराद से कहा कि वो कर्ज के मामलात को अलग करने के लिए एक तरीक़ेकार वज़े करें। बड़गाम के छतरगांव इलाके में DC बड़गाम ने
मॉडल CSC का इफ्तिताह किया। इस सेंटर से लोगों को सरकार की जानिब से जारी स्कीमों के हवाले से जानकारी फराहम होने के साथ साथ मुख्तलिफ स्कीमों के लिए अपना नाम दर्ज करने में मदद मिलेगी। आधार, पैन कार्ड और दीगर सहूलत भी मैसर होंगी। कल्याण नौशहरा राजौरी में एक टिपर गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में टिपर के ड्राइवर की मौत हो गई है। ये टिपर राजौरी से नौशहरा जा रहा था। बताया जाता है कि गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई थी। तमाम लवाजमात को पूरा करने लाश को आखिरी रुस्वात के लिए लवाहिकीन के हवाले किया गया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मलानो ठाठरी में एक रोजा स्पोर्ट्स मेले का इनेकाद किया गया। युवा केंद्र डोडा वजारत स्पोर्ट्स की जानिब से मुनक्कदा इस इवेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर कुशल गुप्ता और NY के डिपार्टमेंट के ओहदेदार और दीगर अफराद इस मौके पर मौजूद थे। अखनूर के खोड़ में एजाजी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में BJP के बाबा चंचल और नरेंद्र सिंह भाऊ मेहमान खसूसी थे। प्रोग्राम में फौज के जवानों को एजाज से नवाजा गया। इस इक़दाम का मकसद फौजी जवानों का हौसला बढ़ाना था। पुंछ में KVK और ज़रई यूनिवर्सिटी जम्मू की जानिब से किसानों के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर किसानों की रहनुमाई की गई और उन्हें तिब्बी तौर पर मुफीद पौधे लगाने की भी तरकीब दी गई। पुंछ के सरहदी इलाके बालाकोट में BJP और पंजाब की एक NGO की जानिब से मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर लोगों ने BJP और NGO का शुक्रिया अदा किया। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।